Hello dear students, today we are starting our new chapter, that is the ninth number, that is the property of a solid. Okay friends, now just here we have a state of matter, that is we have state of matter, that is the solid, liquid and gases. Okay, so in this 11th session we are going to study all this property, that is the property of a solid, property of a liquid, that is a fluid, and gases, that is the kinetic theory of gases. So in 11th standard we are going to study this chapter, and here today we are starting this chapter, that is the property of a solid, right. So here generally we know that in solid the construction of these molecules are very close to each other. What? They are very close to each other. Okay. So in solid we can say that the construction of this atom, or you can say it is a molecules, are very close to each other. So it is a structure of this solid. Okay. In liquid they are डिस्टेंस, दे हैविंग अ सम डिस्टेंस. ओके, मतलब यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होगा कंपेयर टू सॉलिड. एंड इन गैसेस दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. गैसेस में बहुत ही डिस्टेंस पर होगा, राइट. सो बाय दिस वे इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट. सो हम देखेंगे यहाँ पर सॉलिड. तो सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज दे हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. तो उसकी वजह से वो बाउंड रह सकते हैं, राइट. नाउ फ्रेंड्स, हियर जो मेन प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो जस्ट फोकस हियर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड. ओके, तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हियर वी कंसिडर दिस wire, right, and at the end of the wire there is an arrangement of this pen. Okay, यहाँ पर हमने एक पेन जैसा कुछ लगा दिया है. Okay, now here what we can say that the L is the length of this wire. What? L is the length of this wire, and we are going to add masses. Suppose I am adding M1 mass, so then what happen? The length of the wire is increased. Okay, so you can say the increase in a length of wire is delta L1. Okay, when I may add this M2 mass, then the increase in a length once again take place, that is what? Delta L2. Once again I adding mass, that is what? You can say M3, and then you can say that the increase in a length is delta L3. That is what? Here on adding mass to this wire, the increase in a length take place. What happened? Increase in a length take place. That is here in downward direction which force act? So you can say mg force act. So due to mg force the increase in a length take place. That is when I add m1 the increase in a length is delta L1. When I add m2 the increase in a length is delta L2, and total length increase, that is the delta L1 plus delta L2. When I add another mass, that is the M3, then total increase in a length, that is the delta L1 plus delta L2 plus delta L3. Okay, so due to mg force the length is increased. That is here we can say that the deformation take place. ये length increase हो रही है, so ultimately it deform its shape. Okay, so you can say that deformation take place, और जो फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे दैट डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या कहेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके, तो ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, राइट फ्रेंड्स. So here mg is known as the deforming force, and here increase in a length is known as deformation. Okay, now what happen if we removing this deforming force? मतलब मैंने m3 remove किया, then it come back to delta L2 position. When I remove m2, मतलब m2 mass मैंने निकाल दिया, then it come back to this delta L1 position. And when I remove all this mass, that is m1 भी remove कर दिया, then once again it come back to its original position. That is on removing this deforming force, what you can say that on removing deforming force, on removing deforming force, it come back to its original position.
what you can say, it come back to its original position, you can say it restore its position. क्या कहेंगे हम, it's restore its position. तो यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा, दैट इज नॉन एज रिस्टोरिंग फोर्स. कौन सा फोर्स होगा, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. और डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इट रिस्टोर इट्स पोजिशन. व्हाट, इट्स रिस्टोर इट्स पोजिशन. ओके, रिस्टोर करने की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ. वाई, ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, और ये डिफॉर्मेशन फोर्स को हमने रिमूव किया, तो वंस अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ये रिस्टोर हुआ. दैट इज नोन एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट. एंड फ्रेंड्स, हियर वी कैन से दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स is always proportional to, you can say, change in length. Restoring force is directly proportional to change in a length, that is the F is proportional to, here change in a length is a delta L. That means you can say that F is proportional to delta L. Remove proportionality sign, then you can say F is equal to K delta L, where K is known as force constant, or you can say in case of spring it is known as spring constant. ओके फ्रेंड्स, तो मतलब यहाँ पर ये वायर है और वायर में हमने मास अप्लाई किया तो डिफॉर्मेशन हुआ. डिफॉर्मेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन अ लेंथ, एंड ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. बराबर. दैट मीन्स वी कैन से दैट इट एक्ट लाइक अ स्प्रिंग. जैसे स्प्रिंग पर यहाँ पर हम मास अप्लाई करेंगे तो लेंथ इंक्रीज होगा. कितने लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल. और जैसे ही मास रिमूव कर दिया, सो वंस अगेन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. कहाँ आ गया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, राइट. दैट इज ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स इट कम बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन, राइट. मतलब उसकी पोजीशन है वो रिस्टोरिंग हुई, रिस्टोर हुई, राइट. सो रिस्टोर पोजीशन किसकी वजह से हुई, तो रिस्टोर पोजीशन हुई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. किसकी वजह से हुई, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, राइट. अब ये जो वायर है, सो वायर इज अ केस ऑफ सॉलिड, राइट. तो ये वायर के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं. सो जस्ट फोकस हियर. तो यहाँ पर ये वायर का अंदर का स्ट्रक्चर है, राइट फ्रेंड्स. तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स है वो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, राइट. तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे लेटाइस स्ट्रक्चर. क्या कहेंगे हम, लेटाइस स्ट्रक्चर. ओके. और यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है. दोनों के बीच में क्या होगा, सो यू कैन से ये दोनों के बीच में होगा, यू कैन से इट इज़ अ दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. कौन सा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, राइट. सो यहाँ पर ये दोनों के बीच में होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. बराबर. ये मॉलिक्यूल के बीच में होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ओके. सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोज हमने कंसीडर किए ये एंड दो पार्टिकल. बराबर. तो ये दोनों के बीच में होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट. और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फॉर्म हो रहा है, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फॉर्म क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. बराबर. मॉलिक्यूल के बीच में ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल. ओके, एक मिनट, ये है ये रेड कलर वाला ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल. ओके, ये कौन सा फोर्स प्रेजेंस है, यू कैन से इट इज़ अ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट हियर.
बराबर, यहाँ पर इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। तो ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करेंगे, मतलब एक फोर्स हम अप्लाई करेंगे ये डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स अप्लाई करेंगे ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, राइट। नाउ दे बिहेव, और ये जो दोनों के बीच में आप एक स्प्रिंग कंसीडर करो, ये क्या है? ये है स्प्रिंग, ओके। मतलब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर स्प्रिंग कंसीडर किया है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हुआ? तो यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हुआ, दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हुआ? दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जैसे ही आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स को दूर करोगे, सो वंस अगेन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन पर, ओके। मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, राइट। सो ऐसे ही होता है कि सपोज मैंने ये वायर है, वायर के एंड पर मैंने मास अप्लाई किया तो लेंथ इंक्रीज हुआ, और जैसे ही मैंने मास निकाल दिया देन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओके। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एक स्प्रिंग जैसा होता है, मतलब है नहीं, ये हम इमेज करते हैं, राइट। सो एज द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस, तो ये लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हुई और इसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, सो it want to restore its position, so on removing this deforming force it come back to its original position। क्या होगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, राइट। सो दिस particular property of a solid is known as elasticity। क्या कहेंगे हम? elasticity, right? So what is the meaning of elasticity? So it is a property of a solid. Which property of a solid? To restore its position, okay। तो ये प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलास्टिसिटी। जनरल में हम जो यूज़ करते हैं इलास्टिक, तो ये इलास्टिक वर्ड कहाँ से आया? इलास्टिसिटी पर से, ओके। इलास्टिक की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, राइट। तो इट इज़ द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, ओके। चलो अब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हम जनरली ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेस एंड अनदर वन इज नॉन एज स्ट्रेन। क्या क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। तो क्या है स्ट्रेस, क्या है स्ट्रेन, देख लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट वन दैट इज स्ट्रेस, ओके। सो स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब यहाँ पर फोर्स चेंज होगा तो ये स्ट्रेस चेंज हो जाएगा, मतलब उसका दूसरा नाम आ जाएगा। एरिया चेंज होगा तो उसका नाम दूसरा आ जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाट इज इट? द फोर्स एक्टिंग per unit area, that is known as stress. What is the stress? The force acting per unit area is known as stress. You can say it is nearly equal to pressure. ये pressure जैसा ही है but pressure नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसका यूनिट क्या होगा? सो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी दैट इज m1l-1 t-2, राइट। तो ये हुआ स्ट्रेस। जनरली हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं, दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में ही दूसरा एक पार्ट है उसका सब पार्ट, दैट इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। देन वॉल्यूम स्ट्रेस and then shearing
स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस में ये 3 तरह के स्ट्रेस है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस एंड देन शीयरिंग स्ट्रेस, राइट फ्रेंड्स। तो चलो देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली स्ट्रेस। ओके, उसके बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अ स्ट्रेन, राइट, एंड देन हुक्स लॉ और सब रिलेशन, राइट फ्रेंड्स। तो पहले स्ट्रेस में हम देखते हैं दैट इज अ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके फ्रेंड्स, सो जस्ट फोकस हियर। सो हियर ए है दैट इज longitudinal stress. You can say it is the sigma L, right. So here we can say that sigma L, that is the force upon area, right. That is, here we can say that force acting per unit cross section area, per unit cross section area is known as longitudinal stress. क्या कहेंगे हम उसको? longitudinal stress. That means friends कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हम वायर कंसीडर करते हैं, राइट, उसको थोड़ा हमने एनलार्ज कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है ये? क्रॉस सेक्शन एरिया। जो हमारा फोर्स लगेगा दैट इज अ परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। सो दैट इज नोन एज व्हाट? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स रहेगा? mg। ओके, मतलब ये फोर्स लगेगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, व्हाट यू कैन से, it is a perpendicular to cross section area. What? Perpendicular to cross section area, right. So that is known as what? Longitudinal stress. Okay, तो यहाँ पर F is equal to क्या होगा? So F is equal to होगा mg and A is equal to होगा pi r square, right. So that is a force acting पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, एक ऐड करते हैं, परपेंडिकुलर टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, परपेंडिकुलर टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज नॉन एज व्हाट? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो उसका यूनिट भी वही होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस? दैट इज, यू कैन से इट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज फॉर प्रेशर and dimensional formula m1 l minus 1 t minus 2। अब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में दो तरह के स्ट्रेस है। फर्स्ट है दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। एंड सेकेंड वन है दैट इज अ टेंशन स्ट्रेस, दैट इज अ सेकेंड वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है या फिर वायर है। ओके, तो यहाँ पर दोनों तरह अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है? टेंशन प्रोड्यूस होता है बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये कंसीडर करूँ तो यहाँ पर ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्स F। तो यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? दैट इज अ टेंसाइल। ओके, सपोज मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब ये जो है प्रोड्यूस हुआ दैट इज क्या प्रोड्यूस हुआ? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या प्रोड्यूस हुआ? टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, मतलब यहाँ पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो बाहर की तरफ। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस अंदर की तरफ प्रोड्यूस हुआ, तो दैट इज नोन एज व्हाट? टेंसाइल। मतलब इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टेंशन। क्या है? वन टाइप ऑफ टेंशन। अब ये टेंशन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है कि आप एक वायर को दोनों तरफ से खींचो, राइट। अदरवाइज कोई रिजिड सपोर्ट से वायर के एंड पर कोई एक मास अप्लाई कर दो, मास सस्पेंड कर लो, तो भी क्या होगा? ये टेंशन प्रोड्यूस होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस में
कि फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ओके, क्या है ये वायर, सपोज हमने कंसीडर किया ये वायर, राइट। अब यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनसाइड, बराबर, मतलब कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये इसको ब्रेक कर देते हैं, राइट, मतलब हम कंसीडर करते हैं ये स्मॉल पोर्शन, राइट, ये कंसीडर करते हैं स्मॉल पोर्शन। तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया इनसाइड, राइट, तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट, तो ये होगा कंप्रेसिव, मतलब ये कंप्रेस करेगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। व्हाट यू कॉल इट एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, that is known as what? Longitudinal stress, friend. So it is one of the very important. Next one, that is B. B is, that is a volume stress. क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस सिग्मा V. Okay. So what is the volume stress? So for example, suppose हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक क्यूब, ओके, सपोज हमने यहाँ पर कंसीडर किया है ये एक क्यूब, राइट। अब यहाँ पर ये क्यूब है, अब ये क्यूब पर किस तरह से फोर्स अप्लाई करना है मैं बताता हूँ आपको। ये क्यूब है, सो लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया। किस पर अप्लाई कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में फोर्स है, बराबर है। क्या है? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर में ये फोर्स लगेगा, राइट, लाइक दिस, ओके। सब जगह पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी वजह से क्या होगा? तो इसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट। दैट मीन्स ये सपोज हमने कंसीडर किया ये वॉल्यूम, मतलब ये एक हमने कंसीडर किया क्यूब कंसीडर किया, राइट। अब ये क्यूब पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, बराबर। ये सरफेस के परपेंडिकुलर में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो लाइक दिस, ओके। तो हियर वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ओके। सो सब जगह पर, सब साइड पर हमने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया, ओके। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से जो शेप है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, राइट। दैट मीन्स सपोज हियर वी कैन से V इज अ वॉल्यूम, तो चेंज इन अ वॉल्यूम इज अ डेल्टा V, तो ये नया वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V, ओके। सो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग सिग्मा V
इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पर? डेफिनेशन होगी दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट surface area, surface area, that is known as what? It is nothing but it is known as volume stress, and volume stress is nothing but it is a pressure. volume stress कुछ भी नहीं, ये क्या है? प्रेशर है, राइट? तो सिग्मा v that is equal to F upon A, that is the volume stress, and volume stress that is equal to प्रेशर। इसका यूनिट भी एज इट इज़ ही रहेगा, दैट इज़ द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगी m1 L-1 T-2, राइट? सो दैट इज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट वन दैट इज अ shearing स्ट्रेस। ओके, देखते हैं क्या है shearing स्ट्रेस। Just focus here. C is shearing stress सिग्मा एस। ओके, मतलब सपोज हमने ये एक क्यूब कंसीडर किया है। अब यहाँ पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? टेंजेंशियल फोर्स, राइट? लाइक दिस, दैट इज द एफ टी। व्हाट इज द एफ टी? टेंजेंशियल फोर्स। ओके, सो सिग्मा एस दैट इज एफ टी अपॉन ए, दैट इज व्हाट? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग, tangential force acting per unit area. Tangential force acting per unit area is known as shearing stress. क्या कहेंगे हम उसको? shearing stress, right? That is what Ft upon A. Ft that means a tangential force. ओके फ्रेंड, मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसके एक फ्रंट व्यू आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप है हमारा इस तरह से। ओके, ये शेप है इसका इस तरह से, राइट? अब जैसे ही हमने ये टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पर? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, राइट? तो ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो शेप है वो शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, राइट? मतलब ये जो हमारा शेप चेंज हुआ है वो कुछ इस तरह से हो गया। ओके, like this. Okay, so the shape is change. Okay, so यहाँ पर इसको हम कहेंगे shearing stress। उसका दूसरा एंगल हम देखने जाए तो फॉर एग्जांपल ये है कुछ इस तरह से, राइट? अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो शेप है वो कुछ इस तरह से चेंज हो गया, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर ये एंगल है थीटा। ओके, क्या है? थीटा, और ये चेंज हुआ एक्स और ये हाइट है एच, राइट? So here shearing stress, that is what Ft upon A, that is what tangential force acting per unit area is known as shearing stress. Okay friend,
तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही फोर्स चेंज होता है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस भी चेंज होता है, राइट। दैट मीन्स फ्रेंड्स फिर से एक बार क्विक रिव्यू। तो क्विक रिव्यू में कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर है, क्रॉस सेक्शन है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दैट इज अ फोर्स acting perpendicular to unit cross section area is known as what? Is known as longitudinal stress। क्या कहेंगे हम? It is known as longitudinal स्ट्रेस, बराबर। सेकेंड वन कि सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट के हर साइड पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ओके। सो हियर हर डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, लाइक दिस, ओके। सो हियर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इट इज ऑल्सो अ प्रेशर, ओके। तो यहाँ पर कौन सा है? दैट इज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट सरफेस एरिया एंड इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रेशर, बराबर। यहाँ पर क्या है? दैट इज सिग्मा एल, दैट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये होगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये है वॉल्यूम स्ट्रेस, इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रेशर, ओके। एंड थर्ड वन दैट इज अ शीयरिंग। क्या है? शीयरिंग स्ट्रेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस में हमने क्या कहा था? तो शीयरिंग स्ट्रेस में हमने कहा था कि हम टेंजेंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई टू द टेंजेंट। यहाँ पर टेंजेंशियल हम फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। दैट इज हियर सिग्मा एस दैट इज इक्वल टू एफ टी अपॉन ए, दैट इज व्हाट? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या कहेंगे हम? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, राइट। उसको हम कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। ये है वॉल्यूम स्ट्रेस और ये है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके फ्रेंड। तो ये सेशन में हम स्ट्रेस तक ही देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्ट्रेन एंड जो दूसरा यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो सब हम देखेंगे।